Very good afternoon. Welcome back to the afternoon session, first session in the afternoon session of the third day of the training program. And today we have with us Dr. Sanjay Kaushik ji, who is a professor in University Business School, Punjab University, Chandigarh, one of the renowned B school in the northern region. So, on behalf of NITTT Chandigarh, sir, I welcome you to this training program on FDP on business startup and social entrepreneurship. We have the three nodal centers connected with us. One at Sati, Vidisha, Madhya Pradesh. Another is MMU Mulana, MMU Ambala, and the third we have Gandhi Engineering College from Odisha. So we have faculty members from these institutions sitting over there, and some students are also attending the session. Then we have 6 participants over here. 3 are from Chandigarh College of Architecture from PEC, and 2 are from Polytechnic System from Haryana, 1 from Delhi. So this is all about the background of the participants. And so without taking any time, I welcome you and request you to engage the platform on the theme HR practices in small and medium enterprises. Thank you very much. The medium instruction would be English and Hindi. Mixture. Okay, thank you very much. And the title assigned to me is HR practices in small and medium enterprises. You know, because this is probably the third day we are into this. This is the third day. A few things you might have even done in the previous 2 days. But let us begin with something core and basic, and then moving on to actually the HR practices, because the title says HR practices in small and medium enterprises. So let's first understand what these small and medium enterprises are and how they actually differ with the large enterprises, and if at all there is any difference between the HR practices which are taken care in small and medium enterprises as compared to the large enterprises. Small and medium enterprises, can we have, directly I can get in touch with them? So let's begin with, because HR practices we'll talk along with, but after this, small and medium enterprises, any idea how actually, or we have done with how actually we define the small and medium enterprises? Anyone from the nodal centers as well, or those we are sitting here? Depending upon the number of employees, investment, and चलिए पहले तो let me make it clear, it's not number of employees. It is not number of employees. Yeah, he is correct. Not in India. When we define small scale enterprises, we don't talk the number of employees. Okay, investment. You talked. Anyone, if can say what is the investment limit, if at all we talk? 25 lakhs for manufacturing. 25 lakh. In micro. In micro. Okay. And services it is up to or less than 10 lakhs in services. That is for the micro enterprise. And then 25 lakhs to I think 5 is small. And then above that is medium and then small. Correct. 10 crore. You are talking manufacturing. Okay. Anyone from the nodal center can also join us. So let me see. Any nodal center. So that we are able to find out with us actually. Are you able to hear me? Hello, are you able to hear me?
Mhm. They are able to listen me, can I? But hello. Gandhi Engineering College, Odisha. Santosh Kumar ji, over there. चलिए अब मेरे ख्याल बाद में विल गेट इन टच विद देम सो दैट वी गेट रिस्पांस के जो आप बात कर रहे हैं इट रीचेस टू देम ही इज वेरी करेक्ट इन डिफाइनिंग सो पहली जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हम लोग बात कर रहे हैं दी अच्छा एनीवन द एक्ट व्हिच कवर्स ऑल दिस which takes care of small and medium enterprises definition and the investment limit and any idea? No. Okay. Okay, there is an act which is known as Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. We call it as MSME. And it came in the year 2006, 2006. So MSME Act 2006, we talks small and medium enterprises. And we'll just now, as he said, we'll just now talk the definition, but let me tell you, most, rather, more or less all the organizations in India, they adhere to this definition. That means if we are talking the banks, if we are talking the RBI, if we are talking the other institutes, so they would follow this definition. Now, this definition says, before 2006, before this act came into existence, the definition was different and it was the common definition for the service sector as well as the manufacturing. But in the year 2006, when we started with the MSME Act 2006, the definition for manufacturing is different and for the service sector it is different. And the definition says that for the manufacturing sector, because the act says micro, small and medium enterprises. So micro, small and medium enterprises development act. Now for the manufacturing sector, micro enterprises means those enterprises which have the investment in plant and machinery up to rupees 25 lakh. And in the service sector, it's because we are talking services, so we call the investment, instead of in plant and machinery, we call it as investment in equipments. Investment in equipment up to rupees 10 lakh. So the difference is clear. When we talk micro, it is 25 lakh for the manufacturing and it is 10 lakh the equipment, we talk 10 lakh for the service sector. Okay, then small enterprises. In manufacturing, because micro is up to 25 lakh investment limit, from 25 lakh to 5 crore. 5 crore. It is in the manufacturing, the investment limit in plant and machinery, we call it as for the manufacturing, the small scale enterprises. And in the service sector, this investment limit is up to rupees 2 crore. And then the medium enterprises in manufacturing, the limit goes from 5 to 10 crore, and here in service sector it goes from 2 to 5 crore. Done. Now with this we move further. Now one thing is clear, in manufacturing we are talking more than 10 crore, so would come under the large enterprises, and in service sector beyond 5 crore we would talk of the large enterprises. Before this act came, we used to call as the small scale industries, and you will notice this, now we call it as the small scale enterprises, and that is why we divided it into manufacturing as well as the enterprises. Okay, one more thing before we move towards the HR practices. Any idea at all? You know, there are different privileges which are given to small scale industries, from getting soft loan to different concessions, and even in marketing and promotion, the benefits are given by the government of India. But
1991, when we say the liberalization we say was set in, or liberalization, privatization and globalization policy was actually introduced, though this does not mean that LPG came in 91 only, because even before that we were having, but the speed and the pace of LPG, it picked up in 1991, and that is why this year is actually associated with, we say, the LPG started. When it was started, and even before that, there were number of items, and more than, I'm talking now, not even around, more than 800. Number of items were exclusively reserved, which could be manufactured only by the small scale industries. That means no other large enterprises could manufacture this. Any idea how many industries and the items today are exclusively reserved, where only small scale enterprises can manufacture the items? Any idea? 100. It is 100, less than 100. You said 100. Yeah, wahan jodo, please. If we can get, nahi to it will get monotonous. But pucho, are they able to get me? Can I? Madhya Pradesh, are you able to hear us? MMU, Ambala? MMU, Ambala? But are they able to hear me? Yes, yes, sir. Is it clear? So why are they not responding? Or They are yesterday at this session, students were asking. But since नहीं, आस्किंग तो ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तो कुछ हाथ उठ खड़ा करें कि सुन रहा है तो यार. okay. Sati, Vidisha, are you able to hear us? Or you are sitting like dummies only? Sati, Vidisha. चलिए, मुझे लग रहा है अपने को अपने तक ही रहना पड़ेगा. चल छोड़ो जी, leave it. मुझे लग रहा है हम लोग ही बात करेंगे. ठीक है जी. So I don't think they'll be able to. Okay, चलिए अब let's you said कि 100 less than 100 items, that's what you said. आपको पता है, when I said it was around 810 actually, 91 or so, slowly the process of de-reserving started, and the items which were exclusively reserved to be manufactured by small scale, the number started reducing. 810 से घटते till last year. I am talking before April 2015. That is roughly 1.5 years back. We were left with only 20 items, which could be exclusively manufactured by small scale units. And in the month of April 2015, further de-reservation was done, and since roughly 1.5 years, not even a single item is exclusively reserved for the small scale enterprises. Not even single. Even those 20 were de-reserved in April 2015. So today, if we talk how many items are reserved, not even single. Now, what does this mean? When we say not even single item, is 10th of April 2015 I am talking. When we say not even a single item is reserved, this means today if I start manufacturing an item under the banner what we call small scale industries, tomorrow any big businessman, if at all, wants to manufacture the same item, having a unit absolutely in the plot adjacent to mine, they can do that. But now we have to take care of one thing. When we talk small scale industries, we have the investment limit in plant and machinery, and only then we get the benefits, because if we adhere to the limits. Now here we are talking of the limits, and then we say that we'll get the benefits only when we follow the limits, and then somebody with the large enterprise, they come along with and they start manufacturing the similar item,
Now this means the competition can get very hard. Now that's what I say. वो मैंने थोड़ी सी जरा आसान भाषा बोल दी, competition will get very hard, उसका मतलब वही है जो आप कह रहे हो, you know this. But अब इसका मतलब क्या है? देखिए ये तो बैकग्राउंड है, तभी मैंने कहा था ये तो बैकग्राउंड है, अपन इससे आगे बात करनी है. इसका मतलब क्या है? बी रेडी फॉर द कंपटीशन. और इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. वी कांट ब्लेम द गवर्नमेंट और द इंडस्ट्रियल पॉलिसी और द एक्ट. वी कैन नॉट, बिकॉज यू नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इफ यू गो थ्रू द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वी कॉल अगेन, इट वाज इन 1991, उसको भी हम लोग आज भी लेटेस्ट बोलते हैं 26 years आफ्टर. दैट डजंट मीन वी आर टॉकिंग 26 साल पुरानी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट फॉर द पास्ट 26 years, व्हाट आर द चेंजेस? वी कीप ऑन टॉकिंग द चेंजेस. सो इफ वी टॉक टुडे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस वक्त जब आई थी, बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए उसके अंदर. और द ऑब्जेक्टिव्स से, बिकॉज वी फॉलोड द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेज 3 चीजें जो उसमें मेन है, मैं आपको बताता हूं. 1, दे से वी हैव टू टॉक प्रोडक्टिविटी. Now productivity simple means that we have to talk production in relation to inputs, output in relation to input. पहले हम लोग output की बात करते थे. Now what we talk is output तो ठीक है भैया, what is the input, what is the time consumed, what is the energy consumed, what is the money consumed, how many people actually are taking care of that particular activity. So now we talk output in relation to input. Second, the industrial policy says be ready for international competition. And third, they say gainful employment. Gainful employment means the number of people actually required उतने ही रखने हैं, फालतू में कोई जरूरत नहीं है. Now उस स्लाइड के हिसाब से be ready for the competition, and this is true for whole of the economy. And even you know the rule which used to be there for जंगल राज जैसे बोलते थे, survival of the fittest, that prevails in the economies today. So competition is there. अब इसका मतलब क्या है कि अगर अपने आप को बचाना है, if we want to survive, then we have to be full of muscles. We should have the capability to meet the competition. न्यू आदमी कैसे बीट करेगा सर, जब हालत ही है तो? कौन से वाला आदमी? स्टेट पॉलिसी उस टाइप की है, जब आपने कुछ छोड़ा ही नहीं स्मॉल और मैक्रो के लिए, how that person will survive? सर मैं उसका एक तरीका बताता हूँ. Let the person survive. नहीं, it's not the question let the person survive, क्योंकि मैंने अभी आपको ना एक पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है. नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने एक सेंटेंस बोला था, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं हो, उसको दोबारा बोलता हूँ मैं. मैंने ये कहा था, number of benefits are provided to small scale enterprises, but मैंने ये कहा था कि but ये जो बेनिफिट था ना, items to be exclusively reserved, वो खत्म हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि जो आपको पहले पूरी प्रोटेक्शन मिलती थी, क्या तो चिंता मत कर, इस एरिया में कोई नहीं आएगा, वो नहीं है. एक सेकेंडली, देखिए खाली बात करने से बात नहीं बनती है. एक्चुअली यू हैव टू फेस द हार्ड रियलिटीज, और हार्ड रियलिटीज ये हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन. अगर मैं सिर्फ अंडर प्रोटेक्शन, ये तो चलिए आप स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं, आप जहां मर्जी चले जाइए, प्रोटेक्शन आर जनरली डूइंग अवे विद, खत्म हो रही है ना. इसीलिए इट्स वेरी क्लियर, फेस द कंपटीशन. पर मैं आपको ये बात यहीं पे खत्म कर दूंगा कह के कि 26 साल से जो चीज आप कह रहे हो ना, हम लोग इससे डरते रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा. कुछ नहीं हुआ. द बेस्ट पार्ट इज इंडियन इंडस्ट्री एंड द बिजनेस, दे हैव बीन एबल टू सर्वाइव एंड सर्वाइव गुड. यस ऑफ कोर्स, अब जो उसका असर होना था, जिसको आप 100% मान के चल रहे हैं खत्म ही ना हो जाए, वो खत्म नहीं हुआ, पर असर तो देखिए, अगर कोई एक पॉलिसी चेंज करोगे असर तो होएगा ही होएगा, राइट. सो वी वर एबल टू फेस एंड बीट इवन द कंपटीशन. दैट्स द बेस्ट पार्ट. लेकिन चलिए आप, क्योंकि हमारा टाइटल एचआर प्रैक्टिसेस से है, हम लोग उस तक चलते हैं. नाउ विद दिस बैकग्राउंड कि कंपटीशन पूरा है, आपने भी कहा जी फिर बचेगा कैसे. अब बचने के तरीके ढूंढने हैं आपने, और हम लोग अपने यहाँ पे वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ के हम लोग बचेंगे कैसे, जहां तक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस या मीडियम एंटरप्राइजेस का ताल्लुक है. यू नो
लेट अस फर्स्ट टॉक कि अपन कौन कौन सी एचआर प्रैक्टिसेस की बात करेंगे और वो अपने को कितनी हेल्प कर सकते हैं किसी भी चीज में. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. उस एग्जांपल में कुछ हार्ड रियलिटीज हैं और वो हार्ड रियलिटीज क्या हैं. एक कि जब हम लोग बिजनेस के अंदर लोगों से काम करवाते हैं, when we make, of course, when I do the business, I keep certain employees, I make the people work for me. I'll not name the company, but there's a company near Chandigarh which manufactures textile industry के अंदर है. And a few years back when I was there, now they have a production unit which is bigger than this room where we are sitting, bigger, I mean, probably 4, 5, 6 times than the room we are sitting in. Production was being done. I heard a news item in one of the TV news channels. They said कि जी मुंबई में एक कोई कंपनी थी, वो भी टेक्सटाइल कपड़ा बनाती थी. Now they had more than 1,000 people working in there. I am talking something यहाँ पे बद्दी में, चंडीगढ़ के पास. Would you believe? प्रोडक्शन यूनिट के अंदर मुंबई के अंदर जो टेक्सटाइल कंपनी का जिसका न्यूज आइटम हमने देखा, वहां पे 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे. बद्दी के अंदर प्रोडक्शन यूनिट जो यहाँ से 4-5 गुना बड़ा है, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन वाज वर्किंग इन द प्रोडक्शन यूनिट, नॉट इवन वन. ऑल machines are lined up and in between two machines robots were there. रोबोट यहां से सामान उठाता था दूसरी मशीन पे, वहां से उठाता तीसरी मशीन पे. तो मैंने पूछा, मैं यार व्हाट इज दिस, तुमने बंधा हुआ नहीं रखा हुआ? तो जवाब एक सिंगल लाइन आंसर था, पर डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी अपनी मर्जी. सिंगल लाइन आंसर क्या था कि सर बंदों का पंगा बड़ा है. कौन पंगा लेगा बंदों के साथ? ऐसी की तैसी रोबोट काम करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, स्विच ऑन करना है एंड दे स्टार्ट वर्किंग. लेकिन अब इसका मतलब क्या है कि ये जो अपन बार बार कहते हैं ना बंदों का पंगा बड़ा है, अगर इफ आई एम एबल टू डू अवे विद वो जिसको अपन पंगा कह रहे हैं, इफ आई एम एबल टू मैनेज माई एचआर माई रिसोर्सेज वेल, वो पंगा खत्म है. एंड आई कैन बेट दिस, दे कैन गिव मोर बेनिफिट्स देन द मशीनरीज गिव. पर वो पंगा पहले खत्म करना है, और इसीलिए ये एचआर मैनेजमेंट की बार बार बात करते हैं. That's what I say. Because it's the people who create the robots or machineries. It's the people who create this. अब इसका मतलब क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं एचआर प्रैक्टिसेस की. पहले कोई 5-6 चीजें जो मेन एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर होती हैं और फिर वो किस तरह से चल रही हैं उसकी बात करेंगे. देखिए, एचआर अगर आपने if you have talked in any of the sessions, what we say is एचआर के अंदर attraction of दी पोटेंशियल एम्प्लॉइज, मतलब जो आदमी आपकी कंपनी का एम्प्लॉय बन सकता है उसको आप जब अट्रैक्ट करते हो, यार तू आजा मेरी कंपनी में एंड जॉइन माय ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए, से लेकर व्हेन द पर्सन लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, एनी एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विच इज कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉइज, वी टेक विद इन द प्रीव्यू ऑफ एचआर एंड वी कॉल इट एचआर मैनेजमेंट. तो जब एचआर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जब मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी अट्रैक्ट द पीपल, for example, I have a manager of finance, the post of manager finance. There 20 people might apply for this. I keep one. So I am attracting even more than 20, but 20 are applying. Now this is known as recruitment. As compared to selection, when I say, okay, then a process is adopted where out of 20, we select only one. The process could be the written test, the group discussion, the interview, or whatever process we can adopt. Now इसका मतलब क्या हुआ? From recruitment, when I attract the employees, to selection, it is HR. Once they get in, they are placed in the organization. Now they are generally trained and developed. So training and development again comes within the HR management purview. Then the jobs which are actually done, we call it, these are analyzed, and when we say these are analyzed, we give the term job analysis.
And job analysis simply means that we describe about the job and we specify within the job that who will do this, what kind of person do we require. If I have manager finance, what are the responsibilities in the job? That is job description, we describe. And who will or who can do this, what qualities do I need? For example, do I need any kind of physical qualities or the mental qualities or the emotional qualities or the psychological qualities, whatever, or the education. Now this is this comes under job specification, we call it. So this job description plus specification we call it job analysis. So the job is analyzed. Again, this is a preview of HR. Then performance of the people, those who are working in the organizations, that is appraised, analyzed, we call it performance appraisal. Then the potential of the people is also appraised. Potential means if I have to recruit the, select the people or even I have to promote the people, then I need to know their capabilities. Whether somebody if is working as manager and then tomorrow he has to move as senior manager or general manager, does the kind of requirement we need for general manager, does the candidate possess that? So if you want to assess that, we call it potential appraisal. So performance appraisal is done when the people have worked. Potential appraisal is done when he has yet to work. So that is the difference. So potential appraisal again comes within the purview of HR management. And then compensation, जिसमें मोटा जो basic है, wages and salaries we talk, what salaries and what wages we need to pay, that comes in this. And then finally, along with other things, जो broad areas जो HR management की हम लोग बात करते हैं, finally it is some who has to be promoted, promotion, who has to be demoted, demotion, who has to be transferred, under what conditions, transfer. And when the people leave the organization, when the people leave the organization means they might leave because of retirement, they might be dismissed, they might be retrenched, they might be laid off. This we call as separation. Separation means when somebody leaves the organization, and it could be because of any reason which I have said. It could be layoff, it could be retrenchment, it could be dismissal, discharge, so on and so forth. Now this means when we attract the people till somebody leaves the organization, any activity concerning with the employees, HR, that is HR management. ठीक है जी. अब टाइटल हमारा है HR practices, कि what is being done, कि हो क्या रहा है small and medium enterprises में. चलिए we'll talk this, लेकिन एक लाइन कहने के बाद, and the line says कि ये जो HR मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, नाउ एज द टाइम इज पासिंग बाय, द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग व्हाट द लार्ज एंटरप्राइजेस आर डूइंग. सो यू विल नॉट फाइंड मच ऑफ द डिफरेंस के लोग जी टाटा वाले तो ऐसे करते हैं, रिलायंस ऐसे करता है, स्मॉल स्केल ऐसे नहीं करता. It's very rare difference you will find. You will find most. हाँ, उसका quantum में फर्क हो सकता है, you know, volume के अंदर फर्क हो सकता है, but generally they would follow the same. जैसे recruitment and selection. You talk any big enterprise working in India. We'll talk the enterprises which are working in India. From the foreign companies to even the domestic Indian companies. आप टाटा की बात कर लो, आप Infosys की बात कर लो, आप TCS की बात कर लीजिए, कुछ भी. What they are doing in recruitment and selection is, what they do, they new employee, if at the age of, call it from 22, 23, 24 years to 26, 27, 28 years, if they have to recruit somebody, that means very initial stages, then generally these organizations would adopt a couple of methods. One, they would go for the campus placements, and two, they will advertise in the newspapers and let the people come and sit for the interviews. Most of the time, you will find, now this season has started, most of the, I mean, the number of years, if we talk 25 years, the last,
roughly from October, that's why I said the season has started, because we are already in September end. From October, November, December, January, February, and generally up to March, these 6 months, they would start their recruitment and they would start moving to the campuses. For every kind, they want, in any area, they want the people, or they would advertise. Now let's talk small and medium enterprises. They are doing the same. The best is those, I mean, because okay, small scale में क्या होता है, there are thousands and thousands of enterprises, है ना? So yeah, medium enterprises के अंदर भी. Now every enterprise, small or medium के अंदर, they might not be following what one small enterprise is following, might be the other is not following. पर जो अच्छे वाले हैं हम उनकी बात करेंगे. You know, the better or the good enterprises, what they do is they also move to the campuses. And even the small and medium enterprises near Chandigarh. We are sitting in Chandigarh. So I'm talking आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो मोहाली के अंदर भी है, एंटरप्राइजेस जो स्मॉल और मीडियम के अंदर, आपके एंटरप्राइजेस जो बद्दी के अंदर भी हैं, या जो दिल्ली में है, या जो गुड़गांव के अंदर हैं, ये लोग भी they say कि no issues, we'll move to the campuses. And now what is happening is, पिछले कुछ सालों से जब देखिए कुछ साल तो ऐसे थे जब जॉब सिनारियो मार्केट में बहुत अच्छा था. उस टाइम पे तो क्या था, जो लार्ज एंटरप्राइजेस थी बड़े वाली, दे वुड अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल. नाउ जैसे ही जॉब सिनारियो थोड़ा सा डाउन होना शुरू होता है, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल अवेलेबल, and the large enterprises, they have not been able to select everyone and recruit everyone. So even the small enterprises, then they, or medium enterprises, they set in. And what is done is, even those institutes, management, business schools, along with the big business houses, they start moving to small and medium enterprises. के जी recruitment के लिए हमारे पास आ जाओ. So एक ही चीज है, वो खुद आए या इंस्टीट्यूट्स उनको बुलाएं. पर जो उससे अगला चीज है वो इंपॉर्टेंट है. बहुत केसेस के अंदर और बहुत बारी what is happening is the amount as salary what a big enterprise will pay, even a medium enterprise, small enterprise is paying. So what does this mean? As a potential candidate, I am ready to move even into a small scale enterprise. And the best and the second, चलिए अपन थोड़ी बाद में बात करेंगे, इसका एक फायदा और भी है, वो 10 मिनट के बाद. Now this means हम लोग कह रहे हैं जी HR practices क्या है, लेकिन अगर एक छोटी सी टेक्सटाइल है फॉर एग्जांपल, आप लुधियाना चले जाओ या कलकत्ता में चले जाओ, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे क्या होता है, आप रिक्रूट करते हो क्योंकि इन एंटरप्राइजेस के अंदर आपको एज ए वर्कर आदमी ज्यादा चाहिए होते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, वो बाहर देखा ना जैसे वांटेड फला 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 फला, एंड दे वुड पुट आउटसाइड द गेट्स एंड दे आर एबल टू इवन फाइंड द पीपल. लुधियाना में चले जाइए, यू विल फाइंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन हु इज एक्चुअली एंगेज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. चंडीगढ़ में नहीं मिलेगा, बिकॉज चंडीगढ़ इज नॉट ए टेक्सटाइल हब. सो those are small enterprises या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं लुधियाना के अंदर, दे आर फॉलोइंग द सेम, जो शायद आपका जितनी 4-5 कंपनीज जो बड़ी टेक्सटाइल बोलते हैं, आप लुधियाना की बात कर रहे हैं. नाउ दिस मींस रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए जो एक एचआर का इंपॉर्टेंट बिगिनिंग का एरिया है, उसके अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दे वुड हैव द कैंपस प्लेसमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ जॉब दे आर टॉकिंग. और हम लोग आज की बात कर रहे हैं 2016 के अंदर, और स्लोली दे आर मूविंग टुवर्ड्स, क्योंकि अभी आपने कहा था ना कंपटीशन बढ़ा है, सो दे नो इट कि कंपटीशन विद द लार्ज एंटरप्राइजेस है, सो दे हैव टू हैव ऑल दोस कैपेबिलिटीज व्हिच प्रोबब्ली लार्ज एंटरप्राइजेस हैव, सो दे हैव इट. So recruitment selection के अंदर they would follow this campus placements and even the campus gates के ऊपर, factory gates के ऊपर वो बोलते हैं, they advertise, and even they advertise in the newspapers, have the interviews done. Now the kind of requirements, kind का मतलब है the capabilities या किस तरह की education चाहिए आपके small और medium के अंदर, उसी हिसाब से उनको train भी करना पड़ता है. And believe me, with only one difference, generally बाकी सब same है. जैसे वन डिफरेंस क्या है, जनरली आप बड़ी एंटरप्राइजेस में चले जाओ, इन मतलब कोई भी, लेट अस नॉट नेम, पर कोई भी बड़ी एक कंपनी में चले जाइए. नाउ व्हाट दे डू इज दे वुड मोर फाइंड ए स्पेशलिस्ट
कि यार ये बंदा आ गया, दिस जॉब ही विल बी डूइंग। एक ही मार्केटिंग के अंदर दे माइट हैव डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। So somebody taking care of advertisements, somebody even taking care of, हालांकि publicity का मतलब कुछ और था, but they would have the people even for the publicity. They would have the people who are taking care of the personal selling only. So they are taking care of sales promotion by different people. हो सकता है ये सारी activities small scale में एक ही बंदा करता हो, क्योंकि number of people who are actually working is lesser. So in small scale they generally require the generalist. वो एक बंदा कई सारे काम कर लेता है, बट इन लार्ज एंटरप्राइजेस दे हैव द स्पेशलिस्ट. एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एक्चुअली फॉर एचआर मैनेजमेंट इज, because you have kept a generalist, he might not be that good when the question of competition comes, because he is taking care of so many things, and when the question of competition comes, now they have difficulty. Now slowly what has started happening is, क्योंकि लिमिट हमारे पास स्मॉल स्केल में इन्वेस्टमेंट की है, लिमिट हमारे पास इस चीज की नहीं है कि अपन ने कितना सामान बेचना है. यू कैन सेल थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो व्हाट दे आर स्टार्टेड डूइंग इज कि अगर स्मॉल स्केल में आपने लोग रिक्रूट करने हैं तो स्पेशलाइज्ड लोग रिक्रूट करो. हमारे पास मोहाली में भी आई नो फ्यू कंपनीज दे से वेरी क्लियरली कि नहीं, आप हमें वी रिक्वायर द पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन दिस एनी पर्टिकुलर एरिया दे वुड call. तो इसका मतलब क्या हुआ जी, that because from generalized we are slowly we are moving towards the specialized requirements. The kind of training and development which is actually being taken care of by the small and medium enterprises a bit different as compared to large. वो किस तरह से है देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऐसा दो शब्द हैं. Can we make a theoretically, of course, generally आप बात करो ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मतलब एक ही होता है. You know, people would say training development means one, but theoretically there is a difference. Can any one of us make? Training largely works on the hands and development works on the mind. Correct. I mean, of course, very near to what we are seeking for. Our coach? Or Training is for lower level people and development. सही है, ये पढ़ा हुआ आपने कहीं ना कहीं, पक्की बात है ये. करेक्ट. पर फिर और आगे बताइए, एक दो चीजें रह गई हैं इसमें. और कुछ इसी से जुड़ी हुई है, एक दो चीजें और हैं. Development broadens your vision. Correct. Training specializes you in doing a particular act. करेक्ट करेक्ट. और अभी भी रह गई एक दो चीजें, एक दो चीजें रह गई हैं, पर आपने जितना कहा वो सही कहा, बट कपल ऑफ थिंग्स. और क्या हो सकता है जी, जो आपने कहा ना स्पेशलाइज्ड, मैं इसको शब्दों में बांध देता हूं. वी से व्हेन वी टॉक ट्रेनिंग, एक्चुअली द पर्पस इज वेरी स्पेसिफिक कि भैया ये मशीन, ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लैपटॉप ये चलाना सीखना है. नाउ ही इज ट्रेन्ड फॉर अ मंथ and now he knows के यार सब कुछ क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वगैरह वगैरह. So he is trained. किस काम के लिए? कंप्यूटर चलाने के लिए या लैपटॉप चलाने के लिए. अगर आप उसको कहें यार तू फलां मशीन भी चला ले, कहेगा सर मुझे कंप्यूटर सिखाया है, so I know the computer only ना, मुझे फलां मशीन कहाँ सिखाई है. पर डेवलपमेंट में क्या होता है, the purpose is general. So when the people are developed, आपने कहा ना mind, so his faculties of mind are developed actually, so he is good enough. Now he can probably solve couple of those things जो उसको आपने शायद नहीं भी बताई है, because mental faculties have been developed. तो एक तो ये, let us distinguish कि शब्दों में कि theoretically what is the difference between the two. एक, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है, दैट दोनों के अंदर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है. यू नो, व्हेन आई एम ट्रेनिंग समबडी और डेवलपिंग, तो बताना तो है ना, कुछ ना कुछ ऐसे करो वैसे करो जो भी है. तो नॉलेज इज बीइंग प्रोवाइडेड, एंड नॉलेज इज वेरी सिस्टमैटिक. आई मीन हैपेजर्ड नहीं, जो मर्जी कर लो. सो सिस्टमैटिक नॉलेज दोनों में होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये कॉमन है. लेकिन इसके अलावा जब हम लोग सिस्टमैटिक नॉलेज देते हैं, जैसे आपने कहा लोअर लेवल एम्प्लॉइज, और वैसे थ्योरेटिकली बोलते हैं दोज हु आर नॉन मैनेजर्स.
यानी मैनेजर लेवल से नीचे के लोगों की बात कर रहे हैं. So we call it theoretically training. Or when we are talking managerial and the higher level, we call it as the development. Then training generally and practically, it is more of practical nature. जैसे मैंने अभी कहा था कंप्यूटर चलाना, तो भैया उसे सिखाया जा रहा है कि मशीन चलाना, उसे मशीन चलानी सिखाई जा रही है. पर डेवलपमेंट में क्या है? इट्स थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल. कंसेप्ट समझाए जाते हैं, थ्योरीज बताई जाती हैं कि लुक दिस इज व्हाट वी कैन अप्लाई. सो यू आर गुड एट थ्योरी, यू आर गुड एट कंसेप्ट्स, एंड दोस कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज कैन बी अप्लाइड प्रैक्टिकली. सो वो डेवलपमेंट है. इसीलिए मेंटल फैकल्टीज की बात की थी हमने. फिर ट्रेनिंग जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. अब शॉर्ट पीरियड कुछ भी हो सकता है, वो हफ्ता भी हो सकता है, वो 15 दिन भी हो सकते हैं, वो महीना भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकते हैं. पर डेवलपमेंट इज जनरली फॉर ए लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस पीरियड. ये जो अपन बात कर रहे हैं, दिस इज अ डेवलपमेंट केस, इट्स नॉट ट्रेनिंग. व्हाट वी आर टॉकिंग इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, व्हाट वी आर टॉकिंग इज कंसेप्चुअल चीजें, एंड नॉलेज बीइंग रिसीव्ड कैन बी यूज्ड एट एनी अदर प्लेस. है ना, वो मेरी क्लास है, वो मेरा इंस्टीट्यूट है, कहीं पे भी. सो इट्स द केस ऑफ डेवलपमेंट. इसका मतलब क्या है? हालांकि दोनों में हमने कहा कॉमन चीज है सिस्टमेटिक नॉलेज. हम लोग सिस्टमेटिक नॉलेज दे रहे हैं जिस भी लेवल को. अब जनरली ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है. अगर कहो ना कि अच्छा तो ये सारा ट्रेनिंग बन गया और ये सारा डेवलपमेंट हो गया, बीच में लाइन खींच लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू नो, थिंग्स आर ओवरलैपिंग ऑफ कोर्स. इसीलिए दोनों शब्द हम लोग अक्सर इकट्ठे बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, क्योंकि थ्योरेटिकल डिफरेंस हमने किया, ट्रेनिंग में क्या था, डेवलपमेंट में. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर इट इज मोर द डोमिनेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड लेसर डेवलपमेंट. बट इन लार्ज एंटरप्राइजेस इट इज मोर द डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड लेसर दी ट्रेनिंग. क्योंकि वो क्या होता है, उसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एनीवन दे वुड रिक्रूट, जनरली उनको ये सारी चीजें वो मान के चलते कि आती होनी चाहिए भैया. लेकिन स्मॉल स्केल में क्या होता है, आप जनरली पेमेंट्स कम होती हैं. अगर आप सर्वे करोगे तो पेमेंट्स आर जनरली लेसर बीइंग गिवन बाय स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. तो वो खुद सिखाते हैं मशीनें कैसे चलानी है, और एक यूनिफाइड प्रोसेसेस थ्रूआउट इंडस्ट्रीज एंड थ्रूआउट ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल और मीडियम में नहीं है. लार्ज में मिल सकते हैं आपको, स्मॉल में बिल्कुल भी नहीं है. सो जो मैं अगर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज चलाता हूं, जो मेरा दिल किया, मैंने फलां कंट्री से खरीद लिया सामान, मशीनें लगा दी, अब चलाने तो सिखाऊंगा ही, जो भी बंदा रखूंगा. सेकेंडली, एक ना लार्ज एंटरप्राइजेस में बड़ा काम चलता है कि दे वुड हैव देयर ओन ट्रेनर्स एंड डेवलपर्स. अब क्योंकि they have a number of employees working for them throughout the year, their training and development sessions keep on going. So they have their own trainers, they have their own setups where training can be given. Small scale में ऐसा नहीं है. They don't have their own trainers. So what is happening in small scale is, या तो मैं सिखा रहा हूं अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है. अच्छा, एनीवन, ऐसे बीच में से याद आ गया, हम कंपनीज की बात करते हैं ना, वी हैव के कंपनीज, बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज, और हम लोग अब यहां पे बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की. कैन वी हैव एनी आइडिया, कैन वी हैव कंपनीज इन द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस? मतलब स्मॉल स्केल की हमने अपनी एक डेफिनेशन की है, अभी मीडियम स्केल की भी की है. तो उस डेफिनेशन के हिसाब से स्मॉल स्केल के अंदर भी मैं क्या कंपनी खोल सकता हूं? अब जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की ये जितनी टिस्को है, एक कंपनी है, तो है ना. इन्फोसिस क्या है, ये तो कंपनी है, ये तो बड़ी. नहीं, हाँ वो तो ठीक हो गया, पर क्या वो स्मॉल स्केल में है बाय डेफिनेशन? क्वेश्चन, क्योंकि हम तो लीगल जो आपके एक्ट के साथ they have written. So इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, ठीक, नाम से मेरी आवाज होता है सर कंपनी के अंदर. ठीक, आपने ठीक कहा. वो बात करते करते याद है कि बिल्कुल ठीक कहा है. क्यों कि जो कंपनीज है ना, इवन इन द स्मॉल स्केल वी कैन हैव इट. आपने ठीक कहा कि ऊपर लिखा होता है.
करेक्ट। हाँ, जनरली वो कंफ्यूजन होती है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्मॉल स्केल के अंदर भी हम लोग कंपनीज रख सकते हैं। और वैसे एक चीज और बताऊं आपको, हम हालांकि इसको टच नहीं करेंगे, पर वैसे बता रहा हूं, स्मॉल स्केल के अंदर भी जो अपन कंपनीज रखते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात चलती है। इवन वी कैन हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल। जब कंपनीज है ना हमारे पास, सो वी कैन हैव द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चलिए ये यहीं तक। सो आप स्मॉल स्केल के अंदर हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर छोटे स्केल के ऊपर होती हैं, चाहे कंपनीज भी रखी हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, चलिए बस 2 मिनट में बताऊंगा, है ना, नहीं तो ये बहुत लंबा आप चले जाएंगे। वैसे बता देता हूं, देखिए एंटरप्राइज जो है ना, एंटरप्राइज किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे एंटरप्राइज एक सोल ट्रेडर भी हो सकते हैं, सोल ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, अकेला आदमी, ये दुकानें जितनी चलती हैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। एंटरप्राइज आपके पार्टनरशिप के अंदर भी हो सकता है। एंटरप्राइज आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी हो सकता है, वो आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में भी हो सकता है। और एंटरप्राइज तो कॉर्पोरेशन भी है। एंटरप्राइज है ना, एंटरप्राइज इंग्लिश वर्ड है एंटरप्राइज, ठीक है। तभी इंडस्ट्री का मतलब ना स्पेसिफिक होता है, तभी 2006 में उन्होंने इंडस्ट्री वर्ड हटा के एंटरप्राइज लिख दिया, क्योंकि उसने सर्विस की बात भी की और इंडस्ट्रीज की बात भी की। सो एंटरप्राइजेस कुछ भी हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या एंटरप्राइजेस कंपनीज हो सकती हैं, तो जवाब मिला कि यस, हो सकती हैं विद इन दिस परव्यू। सो एंटरप्राइज का वैसे मतलब होता है जैसे कोई यूनिट, उसको आप एंटरप्राइज बोलते हैं। तो क्या वो यूनिट कंपनी हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, ठीक है। सो ये अपना था। अब क्योंकि छोटे स्केल के ऊपर है, आई डोंट रिक्रूट दी ट्रेनर्स जो सारा साल ट्रेन करेंगे। पर अब जो मशीनें चलाना सिखाना है या मैनुअल ट्रेनिंग के अंदर मैनुअल काफी होता है, तो हम लोग वो, या मैं एज ए बॉस सिखा रहा हूँ, या मैंने कभी कभी 6 महीने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, आई नीड अ कपल ऑफ डेज ट्रेनिंग फॉर माय वर्कर्स या एम्प्लॉइज, या 1 वीक, बहुत ज्यादा नहीं। सो दे वुड हैव द एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड ट्रेनिंग इज डन। और जनरली ये जो छोटे इंस्टीट्यूट है ना, यू विल फाइंड द ट्रेनर्स एंड डेवलपर्स जनरली यूनिवर्सिटीज से भी एक्सपर्ट्स चले गए, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी चले गए, एंड दे वुड हैव द काइंड ऑफ व्हाटएवर द बिजनेस दे आर डूइंग विद। पर मोर ट्रेनिंग लेस डेवलपमेंट, और उसमें लार्ज स्केल में मोर डेवलपमेंट एंड लेस ट्रेनिंग। एंड सेकेंडली, लार्ज स्केल में क्या होता है, एक नया सिस्टम, नया क्या पिछले कुछ सालों से शुरू हो गया कि कंपनीज जनरली मूव आउट ऑफ देयर बिजनेस प्रेमिसेस। वो लोग क्या करेंगे कि जी डलहौजी चले गए, शिमला चले गए, मुंबई चले गए। सो दे इवन अलाउ देयर फैमिलीज टू गो अलोंग विद द एम्प्लॉइज कि आप अपने बिजनेस से बाहर हफ्ते के लिए, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं, वहां पे आप लोग जो भी टाइम पीरियड 9 से 5 मान लो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बीइंग गिवन एंड रेस्ट यू कैन एंजॉय। वो बेसिक पर्पस इसलिए होता है कि अगर मैं अपने एंटरप्राइज के अंदर ट्रेनिंग करता हूं तो कोई ना कोई बुलाने आ जाएगा, सर ये फलाना काम है फलाना, तो ही सेज के नो डिस्टर्बेंस, लेट्स मूव आउट टू मुंबई, विल हैव ट्रेनिंग फॉर 7 days और along with family allowed। स्मॉल स्केल में जनरली ये सिस्टम अभी नहीं शुरू हुआ, क्योंकि मनी इन्वॉल्व्ड इज मोर, सो दे कीप to small extent this। and secondly, बड़ी कंपनीज आमतौर पे कोशिश करती हैं कि ऑल द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने भी हैं सबको ट्रेनिंग दी जाए। स्मॉल स्केल में ऐसा कुछ नहीं है। दे वुड, अगर 20 लोग काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो 20 में से दे वुड आइडेंटिफाई 3, 4, 5 जो जिसका जैसा काम है, दे वुड बी गिविंग ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल वी सेड इज वन एरिया व्हिच इज डन। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर देखिए, एक्चुअली ना परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेसिक मतलब हमने किया था दैट when I'm working, my performance is analyzed, appraised, evaluated. And my performance means once I have done, for example, full day's performance is analyzed, full month's performance is analyzed. So once I have done the job, analysis is done. There are very concrete and to the point methods of performance appraisal in large scale enterprises. There are many different ways of performance appraisal. हर कंपनी में कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कई सारे हैं, आमतौर पे 5-6 मेथड्स हैं जो यूज करती हैं कंपनीज। लेकिन स्मॉल स्केल में ऐसा नहीं है। स्मॉल स्केल में क्या है, they would have the performance appraisal method devised by themselves, the boss। उसने कह लिया हाँ भाई this man is working good, so प्रमोट कर दिया या नहीं किया या whatever। लार्ज स्केल में ऐसा नहीं है। दे हैव वन मेथड फॉलोड, बड़ा कंक्रीट मेथड होगा, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स एडवांस में बता दिए जाते हैं,
एंड इफ यू फॉलो दैट, परफॉर्मेंस अप्रेज करने के बाद प्रमोशन देनी है नहीं देनी है सेपरेट स्टोरी। स्मॉल स्केल में क्या है, बड़ा ही वेग से मेथड्स दे आर अडॉप्टिंग, समबडी वर्किंग गुड, हाँ भी बॉस ने कह दिया ही इज अ गुड वर्कर, चल नेक्स्ट ईयर तेरी प्रमोशन कर दी या तनख्वाह बढ़ा दी या व्हाटएवर। सो बड़े कोई कंक्रीट मेथड्स स्मॉल स्केल में यूज नहीं कर रहे। हाँ, पर जैसे स्मॉल स्केल हम मीडियम में जाते हैं, मीडियम में क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ गई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाते हैं, सेल बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है, सो वो क्वांटम की जो हमने बात की थी, वो क्वांटम दैट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस अप्रेजल में। उसके बाद पोटेंशियल अप्रेजल की बात की थी, जब अपन रिक्रूट करते हैं तो पोटेंशियल अप्रेजल का एक प्रॉपर सिस्टम है, लार्ज कंपनीज में, स्मॉल में नहीं है। स्मॉल में जनरली क्या होता है, इंटरव्यू बेस्ड सब कुछ चल रहा है। I'll ask the person to come to me, I would interview and find him good enough to work for me, पूछ लूंगा कोई नॉलेज है। सो जो बैकग्राउंड मेरी, मान लीजिए आई एम प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट या आई एम ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट या आई एम ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, वो बहुत लंबी चौड़ी ताल्लुक नहीं रखती स्मॉल स्केल के अंदर, पर लार्ज स्केल में डिफाइंड प्रोसेस होते हैं तो उन्होंने उसी हिसाब से काम करवाना है, इसीलिए। लेकिन एक चीज है, स्मॉल स्केल में क्या है, एनी पर्सन हु इज रिक्रूटेड he would be made to work for all the different kind of jobs within the company. Small scale में, large scale में तकरीबन इस तरह से नहीं है। Okay, then हमने बात की थी प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर और सेपरेशन की। अभी हम बात करके हटे हैं, हालांकि हम नाम नहीं लेंगे, बट देयर आर मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल जहां पे प्रमोशन का सिस्टम बिल्कुल फॉल्टी है, गलत है, सो दे आर नॉट फॉलोइंग अ वेरी गुड सिस्टम। पर स्मॉल स्केल में हालात ज्यादा दिक्कत वाली है, मतलब प्रमोशन के लिए कोई बड़े वेल डिफाइंड मेथड्स हैं ऐसा नहीं है। दूसरा, स्मॉल स्केल में एक बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम आती है, जनरली यू विल फाइंड, क्योंकि वर्कर लेवल का आदमी ज्यादा काम करता है, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अंदर भी ना, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वेरी गुड स्मॉल स्केल के अंदर, उनका मैक्सिमम एफर्ट और टाइम और एनर्जी इस चीज में लगती है कि जो वर्कर वो रखते हैं वो कुछ महीनों के बाद छोड़ के चला जाता है, और वो जिसे एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं, वो एम्प्लॉय टर्नओवर इतनी ज्यादा है कि उनकी एफर्ट उसमें बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। लार्ज स्केल में ऐसा नहीं है। अब इसीलिए जब आप प्रमोशन की बात करते हैं या डिमोशन की बात करते हैं, वो जो नंबर क्वांटम ठीक है एज ए वर्ड या एज ए टर्म, तो हाँ प्रमोशन भी होती है, वहाँ डिमोशन भी होती है, पर उसके मायने जो है वो बहुत कम है स्मॉल स्केल के अंदर। मीडियम में थोड़े बढ़ जाते हैं और लार्ज में और भी ज्यादा है। ट्रांसफर, क्योंकि यूनिट आमतौर पर एक जगह पे होता है, ट्रांसफर होती नहीं है। सेपरेशन आमतौर पे जनरली जब कंपनी छोड़ के चला जाता है या आप निकाल देते हो, उस तरह से होती है। हम लोग बात कर रहे थे कि एचआर प्रैक्टिसेस क्या हैं। मुझे जो टाइम कहा था उन्होंने, अप टू 3 आई हैव टू बी, एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चंस फॉर 10 मिनट्स। I'll be winding up by saying this, and then this is open for discussion. We can have the questions. अगर I don't know वो जुड़ेंगे साथ में तो they can have even पर HR practices, एक दो चीजें कह के I'll be winding up। देखिए आने वाला टाइम, या अभी भी आपने स्टार्टिंग वहां से किया था, इट्स फुल ऑफ कंपटीशन, फुल ऑफ कंपटीशन। हालात ये हैं, ये नहीं पता होता कि आज मैं काम कर रहा हूं तो कल क्या होने वाला है। वो फियर एलिमेंट एक तरह से है, पर अगर वो फियर एलिमेंट है तो उसका तरीका क्या है, दैट वी बिकम कम्पिटेंट टू कम्पीट। अब वी बिकम कम्पिटेंट के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है, यू स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी, और वो आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन द गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी। और दूसरा क्या है कि जो मेरा एम्प्लॉय है, जो मेरा वर्कर है, मैं उसको ट्रेन कर दूं, मैं उसको डेवलप कर दूं, सो दैट ही इज एबल टू कम्पीट इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टाइज जो अपन काम कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे थे, वी आर नॉट टॉकिंग टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग के हमारी एक्सपर्टाइज जो है वो बढ़नी चाहिए। और क्योंकि एचआर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, उसमें रिक्रूटमेंट, जिस दिन अपन उसको आदमी को रखते हैं से लेकर जब वो आदमी छोड़ के जाएगा, एचआर, आप यकीन मानिए एक टाइम ऐसा होता था, हालांकि 90 मतलब पिछले 25-26 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, इसी हिंदुस्तान के अंदर ये जो नंबर ऑफ, आप जानते हैं आज की डेट में भी अगर आप गूगल करोगे, मेरा ख्याल है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 132 करोड़। ठीक है जी, 132 करोड़ और 50-60 लाख के करीब होगी इस वक्त आज की डेट के अंदर। अब 132 प्लस करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। अब उसके अंदर कोई टाइम ऐसा होता था 25-26 साल जब ये पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो लगता था कि यार पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी, और लगता भी ये यार ये तो लायबिलिटी हो गया। पर स्लोली द माइंडसेट हैज चेंज्ड।
टुडे आपने आज किसी को भी नहीं सुना होगा ये कहते हो कि 132 करोड़ हमारी लायबिलिटी है, बिल्कुल नहीं. पीपल टॉक द अदर वे, दे से इट्स एन एसेट, इट्स एन एसेट, है ना. ये ह्यूमन रिसोर्स है. आप आदमी को डेवलप करो, आप आदमी को सेट करो, आप अपने एम्प्लॉय को अच्छा करो, दैट वुड गिव यू मच बेटर रिजल्ट्स एंड विल बी एबल टू कम्पीट विद एनीवन. और उसी परव्यू के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज दैट द एचआर व्हिच इज रिक्रूटेड हैज टू बी डेवलप्ड. अब वो मेरा काम है, और इसीलिए एक बात कह के छोड़ रहा हूं मैं, इसीलिए there are many big organizations, those who are running their own educational institutes, you know, they would have the students enrolled in those, and once they finish the course they would recruit and select them in their own organizations. इसका मतलब क्या है? Now हमें पता था यार मुझे इस तरह के लोग चाहिए, वो 4 साल मैंने इंजीनियरिंग के मान लो किसी और जगह से क्यों लेने हैं, मैंने अपना इंस्टीट्यूट चला दिया, ओके, एंड देन आई गारंटी कि डोंट वरी, आई विल टेक यू. इवन इन एजुकेशन आप तो जरूर शायद जानते भी होंगे, देयर आर सर्टेन कॉलेजेस, नाम तो क्या बताना, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं. कैसे? एनीवन इन पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑफ कोर्स, एनीवन हु इज इन द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इज द टॉपर ऑफ द कॉलेज, and openly the colleges say any topper we would recruit him in our own college. So they know it, yeah, somebody would be the topper, if at all he is the topper, वो उसी कॉलेज में लग जाएगा, and the colleges are doing it. वो कहता है यार जब हमने पढ़ाया 2 साल या 4 साल जो भी पढ़ाया है, हमने पढ़ाया, हमने उसको देखा है how good or bad he is, now he is the topper as well, लार्ज में हो रहा है. अब स्मॉल स्केल के अंदर अभी ये काम शुरू नहीं हुआ कि दे हैव देयर ओन एंटरप्राइज, क्योंकि मनी का खेल है और पैसा शायद उनके पास क्योंकि इतना होता नहीं है. पर स्लोली we are moving towards that, and we need to develop, and the benefits, of course, only those would be survived who are capable enough, and that is why HR has to be made absolutely good. ये जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, जितना लोग काम नहीं करते हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, a good HR management can solve all that. Thank you very much. I would stop here as far as what I had to say, but open for discussion. Any question, anyone? और मुझे पता नहीं चलेगा वहाँ पे. Any questions from first we come? देख लो अगर जुड़ते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो as बंदे 2 बैठे हैं. Okay, then we come to next MMU. MMU. Do you have any questions? इनका इंटरनेट प्रॉब्लम है. But they are listening to your voice. Listening, but connect हो गया तो disconnect हो गया. और तीसरा क्या है वो भी देख लो जी. तीसरा इसमें नहीं सर, इसमें स्टूडेंट नहीं है. Okay, let it be. Okay, any questions from this? I think we can talk, of course. Any Yes. questions? So suppose you're talking about an employee whoever is being recruited. Suppose he's an engineering graduate or a management graduate. So what is the difference in his career graph if he is in a small and medium enterprise vis-a-vis larger? Very good. मैंने बीच में अपन टच करने लगे थे, शायद मैंने कहा था कि I'll talk, है ना. एक ना इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्यों कह रहा हूं, आप देखना, जनरली माइंडसेट कुछ और है पर हकीकत कुछ और है. बताता हूं क्या है. फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात अगर कर रहे हैं या उसके करियर ग्राफ की बात कर रहे हैं, बिलीव मी वन थिंग, हम लोग आप इंजीनियरिंग के अंदर, हम लोग मैनेजमेंट के अंदर ना, देयर इज समर ट्रेनिंग का कंसेप्ट है. लोग हमारे यहाँ तो ये है कि 6 to 8 week पीपल गो फॉर समर ट्रेनिंग. 99% स्टूडेंट्स दे वुड ऑप्ट फॉर दिस समर ट्रेनिंग इन बिग नेम्स, कि TCS में जाना है सर, इन्फोसिस में जाना है, या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है. वेरी रेयर दे वुड टॉक ऑफ स्मॉल कंपनीज. पर आप बताऊं, आप कभी किसी से बात करके देखना जिसने स्मॉल स्केल में ट्रेनिंग की हो, they would learn more. रीजन है उसका. रीजन क्या है? स्मॉल स्केल में if he works for 1.5 months, he would end up working for everything. He would look, he would take care of the accounts भी कैसे यार मैनेज कर रहे हैं वो भी देख लेगा, वो उसका मिशन विजन क्या है वो भी चेक कर लेगा, वो उसकी मार्केटिंग में कुछ होता है कि नहीं होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या हो रहा है वो भी चेक कर लेगा, सब कुछ he'll be able. एंड देन स्मॉल स्केल में क्योंकि नंबर कम होता है ना, इवन दी बॉस या ट्रेनर या जो भी कोई होएगा, ट्रेनर कम होते हैं, जो भी बॉस है वो उसको गाइड भी कर देगा. डायरेक्ट कांटेक्ट में रोज रहोगे. लार्ज में क्या होता है, इट्स डिफिकल्ट जॉब, यू नो. जनरली दे वुड से ओके व्हाट डू दिस प्रोजेक्ट ऑन मार्केटिंग, उन्होंने मार्केटिंग प्रोजेक्ट किया,
जैसे भी किया, ठीक है। अब करियर ग्राफ, वही चीज रिलेटेड करियर से है। You join a small organization, what would be there? Small scale के अंदर आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है to learn everything, absolutely। और मैं ये भी गारंटी से कहता हूं, somebody working in small scale for 3, 4, 5 years, he has all the knowledge of starting his own unit, जल्दी कर लेगा, है ना। लेकिन ये लार्ज स्केल में नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। पता ही लगेगा लास्ट में मार्केटिंग करता रहेगा, और मार्केटिंग में भी पता नहीं कौन सी एक चीज करेगा, उसमें भी पता नहीं क्या है। स्मॉल स्केल में तो अंदर से नीचे से उसको सब पता है, उसका रीच पहुंच जाता है। एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक ये बताऊं, ये भी बड़ी कमाल की चीज है कि स्मॉल स्केल में हो सकता है जो आदमी 3 साल काम कर गया ना, वो 3 साल के बाद आपको ये कहेगा कि आई कैन हैव अ बेटर स्मॉल स्केल यूनिट देन वेयर आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years। क्यों? उसकी अपनी कैपेबिलिटी की बात की। तो करियर ग्राफ जो है ना, देखिए करियर ग्राफ के अंदर स्मॉल स्केल में डिपेंडिंग, मैं एक स्मॉल स्केल यूनिट को जानता हूं, चंडीगढ़ के पास ही है, इट्स अ वेरी गुड यूनिट, वेरी गुड। उन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग का अलग है, मार्केटिंग में कुछ लोग काम कर रहे हैं, एचआर का भी अलग है, एचआर में भी उन्होंने तो कंपिटेंसी मैपिंग भी करवा रखी है अपने एम्प्लॉयज की कि कितने कंपिटेंट हैं नहीं है, और करियर ग्राफ कैसे बनेगा। पर ऐसे यूनिट्स थोड़े से कम मिलते हैं, विच वी कॉल इट वेरी गुड यूनिट्स, मान लीजिए। अब ये जो वेरी गुड यूनिट्स है स्मॉल स्केल और मीडियम, इसके अंदर तो आपको करियर ग्राफ मिल जाएगा। किस तरह से? विद इन कपल ऑफ ईयर्स यू माइट मूव टू द हायर पोजीशन, विद इन 2-3 more years you might still to be higher। आप 5-6-7 सालों के अंदर अगर आप उसी कंपनी में स्टिक ऑन करते हो तो यू माइट बी एट अ वेरी गुड पोजीशन, वेरी गुड पोजीशन। और ऐसी पोजीशन पे भी जहां पे शायद आप 5-6 सालों के अंदर इतनी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगे, अगर अच्छा स्मॉल स्केल यूनिट है, जहां आप 20 साल में भी लार्ज में नहीं पहुंच सकते। ये फैक्ट है। क्यों? आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की, जितना मर्जी बढ़ा लो आप, है ना, वो आपकी कैपेबिलिटी है। सो करियर ग्राफ पूरा है, बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक ही उसमें ध्यान देना होता है कि उसके पास इतना है दैट ही कैन पे यू। कई जगह कई बार अगर हालात ही खराब है तो फिर डिफिकल्ट, अदरवाइज इफ ही कैन पे यू, करियर बहुत बढ़िया है। सेकेंडली, करियर ग्राफ के साथ साथ हम जो भी बात करके रहे, आपकी नॉलेज इतनी तगड़ी हो जाएगी, यू कैन ऑल, मैंने बड़ी दुनिया को जानता था, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, वो भी करियर ही है। करियर का मतलब सिर्फ एक जॉब से नहीं है ना। करियर तो आई कैन हैव, गवर्नमेंट भी कहती है यार अपना बिजनेस, व्हाई नॉट। आज की डेट में तो इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड गुड टू हैव योर ओन एंटरप्राइज देन वर्किंग फॉर समबडी एल्स। व्हाई शुड आई? नहीं। एंड ऑल द बेनिफिट्स आर बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो करियर अगर आपने सही चुन लिया ना, एक यूनिट है, चलिए नाम बताना ठीक नहीं लगता, अंबाला में है, चंडीगढ़ के पास ही तो है, ही इज वर्किंग सो गुड। वो मैंने यूनिट अपने आंखों से लगता हुआ देखा है। फोटो फिल्म होती है ना, ये फोटो फिल्म बनाते हैं वो लोग आपकी मैगजीन्स के अंदर, और ये जो एक्सरेज होते हैं, क्या सीटी स्कैन्स होते हैं, वो जो शीट जिसे बोलते हैं फोटो फिल्म्स बनाते हैं वो। और इंडिया में पहली है जो टक्कर ले रही है, फूजी और नोकिया, वो भी फोटो फिल्म बनाते हैं और बहुत तगड़ी। एंड ही इज वर्किंग सो गुड। उसने, मेरा ख्याल है ज्यादा बंदे नहीं है, 20-25 लोग काम कर रहे होंगे उसके पास, और जनरली सारे मार्केटिंग के अंदर है, क्योंकि जितना बनाता है सारा ही इज एबल टू सेल। पर वो लिमिट तो है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट की भी है, जगह की भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे इतना पता है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैपेबल आदमी ज्वाइन कर जाए, आई एश्योर यू वन थिंग, ही वुड बी एबल टू रीच टू एनी लेवल एंड वुड बी एबल टू अर्न लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ एक मतलब आपको वैसे सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। वो ही इज वेरी गुड एट, अब फोटो फिल्म में क्या प्रॉब्लम होती है, जब फोटो फिल्म बनती है ना, मान लीजिए ये फोटो, वो कहते हैं इसके ऊपर कोटिंग होती है, और कोटिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, कोटिंग यूनिफॉर्म नहीं हो पाती, इट्स वेरी डिफिकल्ट कोटिंग। एंड द मैन हु इज रनिंग दैट, ही लेफ्ट हिज जॉब ऑफ इंजीनियर, 20 years he has done the job, left the job and started his own business, and 20 years he kept on learning कि कोटिंग और ये और वो फोटो फिल्म कैसे बननी है। एक छोटा सा स्टूडियो, वो भी किसी दोस्त का, उसने कहा तू मेरा यूज कर ले यार, जो करना करता रहा तू। एंड कपल ऑफ इयर्स बैक, तो ये आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ नेट पे डला हुआ था, ये वो करके, ही वॉज कॉल्ड बाय डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन
मैं बहुत ज्यादा डिटेल देना नहीं चाह रहा, बट फॉर उन्होंने कहा यार अपनी ना कुछ प्रॉब्लम सी चल रही है, वी हैव हर्ड अबाउट यू वगैरह वगैरह, नेट से भी अपन देखा है, कैन यू डू दिस? ही सेड कि यस. He went there, stayed there for a week, came back, and a huge money. He, of course, when he worked, he got huge money for that also. वो यहाँ बात करना अच्छा नहीं, but he got. Now, what I feel is somebody working in these kind of look at the growth somebody can have, right? And then, of course, knowledge. तो देखिए, knowledge के बगैर कुछ नहीं होना. Competition का ज़माना है. और knowledge भी every now and then the kind of knowledge required is different. वो अपने को चाहिए. मतलब पुराने सिस्टम से मैं सोचूं मैं काम करता रहूंगा, वो नहीं होना. वो फेलियर है, वो पक्का फेलियर है. आप खुद सोच के देखो, साथ ही एक बड़ी कंपनी खड़ी हो जाए, अभी यहीं से शुरू हुए थे ना, खत्म है आदमी. एंड विच इज पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है. कल को कोई यहाँ पे आ जाए. ठीक है जी, और बताइए. Thank you. On behalf of NIEEE Chandigarh and all the Noodle Centers or all the participants at this Noodle Center, I thank you, sir, for My pleasure. My pleasure. Time from your schedule.